Assalamu alaikum, Post RN. Are you able to hear me? I cannot see a single student who is online. Where is the rest of the class? Post RN. There is no one who is online. Let me check. Yes. Meanwhile, I'm uploading the lecture. I hope the students might get online till the time. So I'm uploading the lecture, today's lecture. Till then, Post RN, are you able to hear me? I think there are 3 students who are online. So ask the rest of the class to come online and be in time so that we may proceed towards today's lecture. Ask the class. Walaikum salam. If you're able to hear me, ask the rest of the class to also be there. Meanwhile, I am uploading today's lecture. मैं तब तक लेक्चर अपलोड कर रही हूँ, तब तक आप सब जो है वो ऑनलाइन आ जाओ, ठीक है? I think we have done with the maternal nutrition. Complete हो गया था या it was pending? Post RN? अच्छा, अभी आवाज आ रही है मेरी? अगर हरम मेरी आवाज आ रही है तो लेट मी नो कि वी हैव डन विद द मैटरनल न्यूट्रिशन और आई थिंक डाइट इन लैक्टेशन वाज not completed. It was left. जो हमारा लास्ट लेक्चर था डाइट इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन दैट वाज ओके फाइन, दैट इज लेफ्ट, तो मैं फिर वही अपलोड करती हूँ. I'm uploading the lecture. I think it has been uploaded. I think we were doing from some other. We're doing from this or some other.
Let me just wait. I'm just checking. We were doing from, I think, some other slides, not from this one. So let me just check. अच्छा, जो लास्ट लेक्चर की स्लाइड्स थी, आई हैव शेयर्ड विद यू और नॉट? मैंने आप लोगों को ग्रुप में शेयर की थी कि नहीं? अगर नहीं की तो डोंट वरी, वो मैं तुम लोगों को भी कर देती हूँ शेयर. अच्छा, आई थिंक हम दूसरी स्लाइड उससे कर रहे थे प्रेजेंटेशन से ना, तो लेट मी अपलोड दैट. जो भी हम लेक्चर्स कर रहे हैं, हम साथ साथ जो है, इट इज योर ड्यूटी कि तुम लोग उसको रिवाइज भी करो, ठीक है? एंड इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम तो यू कैन आस्क मी, क्योंकि ऑलरेडी जो है तुम लोग का न्यूट्रिशन का पहले भी जो है काफी कोर्स जो है दैट इज लेफ्ट ओवर, एंड वी डोंट हैव एनी टाइम फॉर रिव्यू क्लासेस. तो इसलिए ये अब तुम लोग जो है साथ साथ करो, ताकि व्हेन एवर वी कम थ्रू लाइव क्लासेस, जब भी ज्वाइन करते हैं हम कॉलेज, तो उसके बाद फिर तुम लोगों की कोई रिवीजन वगैरह नहीं होगी. दैट विल बी ऑल योर टेस्ट और स्टैंड अप्स. सो दिस इज द टाइम यू कैन सिंपली मेमोराइज इट और रिवाइज इट और लर्न इट, एंड यू कैन आस्क. बाद में जो है तो वो सिर्फ तुम लोग के एग्जाम्स होंगे या टेस्ट होंगे. So we have done this all calcium requirement during pregnancy, iron requirement, all we have done. If you find any problem regarding this, you can ask. And we are moving towards the basically importance of nutrition during lactation. During lactation, adequate nutrition is required as the infant derives all its nutrition from the mother's milk. As I also told in the last lecture that even in nutrition, even more energy is required as required during the pregnancy. So it is total 550 kilocalories, which is basically recommended during the lactation, and that is during the first 6 months of the lactation. Mother needs extra nutrition as he has to nourish the fully developed and rapidly growing infant. And any inadequacy in mother's diet influence both the quality and quantity of the mother's milk secreted. Later we will also study the benefits of the mother's milk. If mother's diet is inadequate, then she will draw her own body reserves to meet the needs of the lactation. And nutrition deficiency can lead to the low levels of nutrients in the मदर्स मिल्क. आई थिंक ये स्लाइड भी शायद हम लोग कर चुके थे कि 550 एडिशनल कैलोरीज चाहिए, और जो मदर्स मिल्क है 600 से 850 ml इट हैज बीन सेक्रेटेड डेली. और 6 मंथ्स की जो फर्स्ट 6 मंथ्स हैं लैक्टेशन के, उसमें 550 कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं. एंड आफ्टर 6 मंथ्स और 6 to 12 मंथ्स एडिशनल जो किलो कैलोरीज हैं दैट विल बी रिड्यूस टू 400 किलो कैलोरीज. इसी तरह से जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो भी
1.15 ग्राम पर 100 ml। ठीक है, तो जितने ml अगर सिक्रीट हो रहा है मिल्क, ठीक है, तो उस लिहाज से उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। जैसे नॉर्मली है कि एवरेज जो है 1000 ml मिल्क कैन बी सिक्रेटेड, तो उस लिहाज से जो है अगर पर 100 ml 1.15 ग्राम प्रोटीन्स चाहिए, तो जाहिर है 1000 ml के लिए इट विल बी, यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई इट विद द 10, तो ये तकरीबन 10 ग्राम्स जो है, 10 to 15 ग्राम्स जो प्रोटीन है दैट इज इंक्रीज डेली। ठीक है, और प्रॉपर मिल्क प्रोडक्शन के लिए बेसिकली जो है फर्स्ट 6 मंथ्स में 75 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज रिक्वायर्ड। दीज आर द बेसिकली आइडियल फिगर। 75 ग्राम ऑफ द प्रोटीन इज रिक्वायर्ड एवरी डे। ठीक है, तो इन्होंने टोटल बेसिकली बताया हुआ है, एडिशनल नहीं है 75 ग्राम। एडिशनल तो वही 15 से 20 ग्राम ही है बेसिकली प्रोटीन दैट इज रिक्वायर्ड, बट इफ वी टॉक अबाउट द टोटल प्रोटीन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन दैट विल बी 75 ग्राम्स ऑफ द प्रोटीन पर डे। इसी तरह से जो बाकी हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि मिनरल्स वगैरह हैं, ठीक है, कैल्शियम है, आयरन है, तो लाइक प्रेगनेंसी लैक्टेशन भी उनकी जो रिक्वायरमेंट है दैट हैज बीन इंक्रीज्ड, and that has been increased twice as that required in the pregnancy. तो जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है दैट इज द सेम, आई थिंक दैट इज 1 ग्राम पर डे, यानी कि 1000 मिलीग्राम जो है कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन, and 30 to 40 milligram of calcium is secreted per 100 ml of the milk. Additional intake of calcium is essential to enable the retention of the calcium in the milk, and adequate dietary calcium intake during the lactation meets the mother's calcium need, as well as definitely it also fulfill the infant's calcium needs. इसी तरह से जो है आयरन की जो रिक्वायरमेंट है, ये जो आगे फिगर्स है ना, कैल्शियम 1 ग्राम पर डे चाहिए, जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है आरडीए है कैल्शियम का, आयरन कितना चाहिए 30 मिलीग्राम्स पर डे। ये सब तुम लोगों ने याद रखना है बिकॉज इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू MCQs. Iron requirement during the lactation is the addition of the requirement of the mother and required to make up the iron secreted in breast milk. Most of the lactating women have lactation amenorrhea, resulting in saving of 1 mg of iron per day, which would otherwise lost in the menstrual blood. तो we all know and familiar with the amenorrhea के एक natural है जो कि basically as a contraception भी सर्व करता है स्पेशली फीमेल्स पे, एंड जो कि कंप्लीट जो है ना वो लैक्टेशन पे ही रहती हैं, यानी कि दोज हु आर बेसिकली फीडिंग द मिल्क टू द बेबी। तो जो लैक्टेटिंग फीमेल्स हैं अगर वो कंटिन्यूस जो है वो जो है फीड करवा रही हैं, तो उसके रिजल्ट में जो है ना दे कैन डेफिनेटली undergo amenorrhea, and definitely if there will be no blood loss then it is going to save the iron, and how much iron is saved, that is 1 milligram of iron is saved per day, और total requirements per day की है 30 milligrams per day। ठीक है, और ये आयरन की रिक्वायरमेंट सेम है, ठीक है, जो कि नॉन लैक्टेटिंग अगर मदर्स हैं तो उनमें भी ये सेम है। ओके, जो स्टूडेंट्स अब लेट जी ऑनलाइन हो रही हैं, फौजिया, शमीम, एंड देयर आर ओनली 15 स्टूडेंट्स फॉर ऑनलाइन, विच वेयर इज द रेस्ट ऑफ द क्लास। तुम लोग की अटेंडेंस जो है वो काउंट भी हो रही है और ऑनलाइन जो है हम कैप्चर भी कर रहे हैं अटेंडेंस। तो 40 में से अगर 15 बच्चे ऑनलाइन हो तो फिर ये क्या अटेंडेंस है तुम लोगों की। Anyways, moving towards other nutrition requirement during the lactation, there is vitamin A. Vitamin A, breast milk is rich in vitamin A, so lactating mother needs adequate amount of vitamin A in their diet. और हमें विटामिन ए के सोर्सेज वगैरह जो हैं वो हमें सब पता है, ठीक है। तो जो विटामिन ए की रिक्वायरमेंट है या जो एवरेज अमाउंट ऑफ विटामिन ए विच हैज बीन सिक्रीटेड इन मदर्स मिल्क दैट इज 350 माइक्रोग्राम पर डे रेटिनोल। ठीक है, तो ये हमने विटामिन में भी पढ़ा था कि विटामिन ए जो है वो 3 डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है, रेटिनोल की फॉर्म में, रेटिनाल की फॉर्म में और रेटिनोइक एसिड की फॉर्म में। ठीक है, तो इट हैज 3 डिफरेंट फॉर्म्स। तो ये अगर रेटिनोल लिखा हुआ है तो रेटिनोल या किसी एमसीक्यू में या किसी क्वेश्चन में आ रहा है तो इट इज द सेम एज विटामिन ए। ठीक है, दैट इज अनदर नेम फॉर द विटामिन ए। जी बिल्कुल, मारिया तो फैल फॉर आइज प्रोटेक्शन भी, और इसके अलावा भी इसके ढेर सारे फंक्शंस हैं जो कि हम कर चुके हैं मेरे ख्याल में विटामिन में।
अच्छा, इसके अलावा विटामिन B6 है, जिसका डेली जो रिक्वायरमेंट है RDA जो है दैट इज 2.5 मिलीग्राम पर डे, ठीक है। इट्स रिक्वायरमेंट ऑल्सो इंक्रीजेज। इसी तरह से जो विटामिन B12 है उसकी भी जो रिक्वायरमेंट है ये भी लैक्टेशन में जो है ना इंक्रीज कर रही है। तो इनकी वैल्यूज जो हैं वो हमने लाजमी याद रखनी है। जैसे विटामिन B6 जो है इट इज रिक्वायर्ड 2.5 मिलीग्राम्स पर डे, और इसी तरह से जो विटामिन B12 है दैट इज रिक्वायर्ड 1.5 milligram per day. Folic acid, another essential component which is required during pregnancy as well as during lactation, ठीक है, जो कि RBCs की भी सिंथेसिस कर रहा है, HP लेवल्स को भी मेंटेन कर रहा है। तो जो फॉलिक एसिड है ब्लड सेल्स के लिए जो बहुत असेंशियल है, ठीक है, तो ये 150 माइक्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये कम से कम जो है डिफरेंस जो है मिलीग्राम्स और माइक्रोग्राम्स में, ये भी तुम लोगों ने याद रखना है। अगर तुम 150 मिलीग्राम्स लिख देते तो होल वैल्यू विल बी डेफिनेटली रॉन्ग। So how much folic acid is required? That is 150 micrograms per day is required. इसी तरह से जो विटामिन सी है इसकी भी जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली that will also be increased during lactation, and the value is 25 milligrams per day. Appreciable amount of vitamin C is secreted in breast milk, and additional intake will meet the need of lactation. ठीक है। नॉर्मली वैसे इसकी जो अमाउंट्स होती है ना विटामिन सी की, वो जैसे काउज मिल्क वगैरह है तो उसमें ये एब्सेंट होता है, नहीं होता है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन अ वेरी माइन्यूट अमाउंट्स बेसिकली। सो 25 मिलीग्राम पर डे जो है दैट इज रिक्वायर्ड। जो लोग लिख रहे हैं जी आवाज नहीं आ रही है वो प्लीज अपना कनेक्शन रिकनेक्ट कर लें, बिकॉज ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स हु आर सेइंग कि देयर इज नो वॉइस। अगर नहीं आ रही हो तो फिर बाकी सबको भी नहीं आनी चाहिए ना। तो इरम शहजादी तुम लोग अपना कनेक्शन जो है ना वो रिकनेक्ट करो। Okay, diet and the feeding patterns. Lactating mother requires larger quantities of bodybuilding and protective foods and additional energy yielding foods to facilitate the formation and secretion of the breast milk. तो जितने हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं या जो प्रोटेक्टिव फूड्स हैं, ठीक है, मोस्टली ये कौन सा ग्रुप है जो हमें बॉडी बिल्डिंग या प्रोटेक्टिव फूड्स देता है, ठीक है, दैट इज बेसिकली प्रोटीन्स। ठीक है। तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द बॉडी बिल्डिंग फूड्स और द प्रोटेक्टिव फूड्स, क्योंकि जो बॉडी की रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो भी प्रोटीन का रही है, ठीक है, जो प्रोटेक्शन है वो भी इम्यूनोग्लोबुलिन की फॉर्म में और फाइब्रिनोजिन की फॉर्म में प्रोटीन्स का रही है। तो लार्जर अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो है दैट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग लैक्टेशन। इसके अलावा जो फ्लूइड इनटेक है डेफिनेटली दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लैक्टेशन, जो कि मिल्क सिक्रीशन के लिए बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्लूइड इनटेक शुड बी इंक्रीज्ड एज फ्लूइड्स आर एसेंशियल फॉर एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन. No food should be restricted except the highly spicy and strongly flavored foods, as they impact the flavor to the milk, which may be repulsive to the baby. ठीक है। Otherwise जो है सारी myths हैं, ठीक है, and they are the wrong beliefs कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो there is no as such specific food which has been prohibited during lactation or for lactating females. So only we have to avoid the हाईली स्पाइसी फूड्स विच कंटेन द स्ट्रॉन्ग कंडिमेंट्स वगैरह, जिसमें मसाला जात वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, सिर्फ वो जो है हम ओमिट करेंगे डाइट से। या समटाइम्स इट हैज आल्सो बीन ऑब्जर्व्ड दैट द फूड्स व्हिच कॉज द गैस लाइक गैस फॉर्मिंग फूड्स वगैरह, ठीक है, ये भी आपको प्रोहिबिटेड होते हैं, यानी कि ओमिट करने चाहिए डाइट से। अदरवाइज कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये वाली चीज आपने खानी है और ये नहीं खानी, ठीक है। लैक्टेशन में ऐसी कोई खास जो है रिक्वायरमेंट्स नहीं है। Nutrient needs of the lactating mother are greatly enhanced during lactation. Hence, she should always have snacks in between the meals. Lactating mother should have 5 to 6 meals in a day. Like in other ये disease तो नहीं है anyways, but जैसे अभी तक हम therapeutic diet की बात कर रहे हैं कि there are more meals as compared to the normal जो फीमेल है, ठीक है। तो डेली जो 3 मील सुबह दोपहर शाम के नहीं होने चाहिए, बल्कि जो है 5 to 6 मील्स होने चाहिए, जैसे हम बाकी डिजीजेस में हार्ट डिजीजेस या किडनी में हम बात करते हैं, ठीक है। तो लैक्टेटिंग फीमेल्स या प्रेगनेंसी का भी यही है कि कम से कम आपके जो है 5-6 मील्स होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो उसको फुलफिल करने के लिए डेफिनेटली जो है होंगे, बस इसका मतलब यही है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक दो चीजें मेरे ख्याल में हम वो कर चुके हैं कि वही चीजें मना होंगी जो प्रेगनेंसी में जैसे मनाती हैं, अल्कोहल या ड्रग्स,
या इवन हर्बल कुछ सप्लीमेंट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह की सारी चीजें हैं जो कि प्रेगनेंसी में भी हमें कंसिडरेशन थी कि हमें नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। वो सारी चीजें जो हैं वो हम लैक्टेशन में भी नहीं यूज करेंगे। स्मोकिंग शुड बी क्विटेड, ठीक है। ड्रग्स वगैरह कोई नहीं हमें लेनी चाहिए। यस बिल्कुल मारिया तो फैल, यू आर राइट, बिल्कुल इसी तरह से जो है ना वो गाइड करना पड़ता है कि ऐसी कोई मिथ्स नहीं है कोई, ठीक है। तो हमें बल्कि सबसे ज्यादा गाइडेंस की बीइंग अ नर्स तुम लोगों की जरूरत तो ये है कि फीमेल को गाइड करना कि वो प्रेगनेंसी तक सिर्फ खाती पीती है, उसके बाद लैक्टेशन जैसे ही स्टार्ट होता है तो दे थिंक ऑफ रिड्यूसिंग देयर वेट। वो इस तरफ आ जाती हैं कि हमें अपना वेट कैसे कट डाउन करना है, ठीक है। या जैसे लोग ज्यादा घर वाले भी प्रेगनेंसी तक ख्याल करते हैं, बट एज सून एज द बेबी हैज बीन डिलीवर्ड तो वो ख्याल शाल सारा खत्म हो जाता है और मदर भी थोड़ी जैसे केयरलेस हो जाती है। तो इवन वी हैव सीन के वो जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो तो डबल है प्रेगनेंसी से लैक्टेशन की, ठीक है। और इसमें भी हम सप्लीमेंट्स वगैरह जो है वो कंटिन्यू रखेंगे, कैल्शियम के, ठीक है, आयरन के सप्लीमेंट्स, ठीक है। दैट शुड बी कंटिन्यूड क्योंकि इसमें तो ब्लड लॉस अभी हो भी रहा है, ठीक है, लैक्टेशन में जैसे ही वो स्टार्ट हो जाती है। तो हार्मोन कौन सा बेसिकली विच इज इंपॉर्टेंट फॉर लैक्टेशन, कौन सबसे जल्दी रिप्लाई करेगा, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन। तो बायोकेमिस्ट्री ये भी इतनी तो याद होनी चाहिए ना। लैक्टेशन में दो हार्मोन्स हैं इंपॉर्टेंट। देखो जो पिगमेंटेशन भी इसीलिए है ना कि आप फ्रूट्स ज्यादा लो, मैं तो ये कहूंगी वेजिटेबल्स ज्यादा लो, ठीक है, ठीक है। तो जो पिगमेंटेशन वगैरह ज्यादा हो जाती है वो भी डेफिशिएंसीज की वजह से हो रही है ना कि यू आर नॉट टेकिंग कैल्शियम नहीं ले रहे, आप आयरन नहीं प्रॉपर ले रहे, ठीक है। तो हार्मोनल भी इम्बैलेंस हो रहा है। अब पिगमेंटेशन के लिए भी तुम लोगों का मेलानिन हार्मोन ही है ना। यस, प्रोलैक्टिन इज फॉर मिल्क प्रोडक्शन और एक और भी है बिल्कुल ऑक्सीटोसिन विच इज फॉर मिल्क इजेक्शन। जो दोनों हार्मोन्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड, ठीक है। प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है और जो लैक्टेशन जो है वो क्या कर रहा है, बेसिकली वो मिल्क इजेक्शन में है, ठीक है। तो एज सुन एज द बेबी इज नियर टू डिलीवर तो प्रोलैक्टिन के लेवल्स आ जाते नहीं। आयशा तारिक यू आर रॉन्ग, प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, ठीक है। ओनली देयर आर टू हार्मोन्स विच इज प्रोलैक्टिन एंड सेकंड इज ऑक्सीटोसिन, ठीक है। एक मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है और एक उसको इजेक्शन के लिए, ठीक है। तो इसमें दो तीन कंसिडरेशन और भी हैं कि प्रोलैक्टिन तुम लोगों को पता है कि अगर कोई ऐसी फेयर एंड फ्राइड की सिचुएशंस हो तो प्रोलैक्टिन भी जो प्रोड्यूस करना है ना वो स्टॉप कर जाता है। यानी कि अगर हम जैसे बच्चे को समटाइम्स डरा रहे होते हैं किसी बात से तो वो हार्मोन्स बच्चे भी जो है ऑक्सीटोसिन सॉरी बच्चे भी जो है वो जाहिर है सकलिंग जो एक्ट है बच्चों का उसी वजह से तो मिल्क इजेक्ट होता है। तो जब हम ये अगर किसी बच्चे को डराएं मतलब कि ड्यूरिंग फीडिंग मैं सिर्फ बात कर रही हूँ मदर्स अगर तो वो सकलिंग एक्ट नहीं परफॉर्म करेंगे तो ऑक्सीटोसिन जाहिर है मिल्क इजेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यस देयर आर टू हार्मोन्स प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द लैक्टेशन। इसके अलावा जनरल नीड्स हैं सवाल ज्यादातर इसमें इसमें एक चीज रह गई है कि मदर्स मिल्क के बेनिफिट्स क्या हैं, बेबी के लिए क्या है और मदर के लिए क्या है, वो तुम लोगों के लिए आते होंगे लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ। बेनिफिट्स ऑफ बेसिकली बेनिफिट्स ऑफ बेसिकली मदर्स मिल्क फॉर बोथ, यानी कि मदर के लिए और जो है बच्चे के लिए वो क्या है। तो सबसे पहले मदर के लिए जी हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ मदर्स मिल्क के माँ को इसका क्या फायदा है अगर वो फीड करवा रही है। सबसे पहला तो इसमें यह है कि नेचुरल जो है कंटिन्यूस अगर फीड करवा रही है तो वो एमेनोरिया नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन सर्व करता है, ठीक है, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, ठीक है, जैसे आयरन के स्टोर्स बन रहे हैं। दूसरी चीज ये कि नेचुरली जो है उसका वेट रिड्यूस हो रहा है, यूटेरस का साइज जो है वो नॉर्मल बैक टू नॉर्मल आ रहा है, ठीक है। दूसरा फायदा, तीसरा फायदा कि ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है, ठीक है, फीड करवाना ब्रेस्ट कैंसर से प्रोटेक्ट कर रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट फायदा, ठीक है। तो पहला नेचुरल कंट्रासेप्शन प्रोवाइड कर रहा है, एमेनोरिया जायरा होगा तो नेचुरल कंट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आयरन के स्टोर सेव हो रहे हैं, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर से सेव कर रहा है, यूटेरस का साइज नॉर्मल हो रहा है, ठीक है, यानी कि वो अपने बैक टू अपने नॉर्मल साइज की तरफ आ जाएगी फीमेल। कोई एक्सरसाइज कोई डाइट की ऐसा जितनी ज्यादा जरूरत नहीं होती जब वो कंटिन्यूस फीड करवा रही होती है, ठीक है। तो ये हैं बेसिकली मदर्स मिल्क के बेनिफिट्स जो मदर को हो रहे हैं। अब बच्चों को डेफिनेटली ये हो रहा है कि इट इज वेरी रिच इन एंटीबॉडीज, ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज हैं और ये एलर्जी से बचाता है बेसिकली, ठीक है, एंटी एलर्जिक होता है।
इसके अलावा ये है कि जो फर्स्ट फ्यू डेज का मिल्क होता है जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, दैट इज वेरी रिच इन एंटीबॉडीज, तुम लोगों को पता है, ठीक है। तो उसमें लाइसोजाइम्स एंजाइम्स वगैरह भी होते हैं, ये एंटी इन्फेक्टिव भी होता है, एंटी एलर्जिक जो है एंटी एलर्जिक भी होता है, ठीक है। तो ये सारे जो है ना ये बच्चे को बेसिकली फायदे हैं। फिर इसके अलावा ये है कि इन्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि बॉटल्स मिल्क जो है दैट इज मेजर कैरियर ऑफ इन्फेक्शन। ये हम सबको पता है कि जो बॉटल मिल्क है, जो फार्मूला मिल्क हैं, दे आर नॉट अल्टरनेटिव ऑफ बेसिकली मदर्स मिल्क, जो फार्मूलाज मिल्क है दे आर नॉट अल्टरनेटिव, ठीक है। किसी भी सूरत फार्मूला मिल्क जो है वो अल्टरनेटिव तो नहीं हो सकते इसका, लेकिन जाहिर है कुछ सर्टेन कंडीशंस में जैसे वर्किंग फीमेल्स हैं तो हमें देने तो पड़ते हैं, बट अदरवाइज दे आर नॉट अल्टरनेटिव। और दूसरे मैंने तुम लोग को बता दी कि बॉटल मिल्क जो है बिल्कुल सीधा साधा सोर्स है इन्फेक्शंस का, जरासीम का। तो इन सारी चीजों से हमें जी बचा रहा है जी इम्यूनिटी, बिल्कुल इम्यूनिटी के लिए मदर्स मिल्क जो है। तो इसमें यह है कि कम से कम फर्स्ट 6 मंथ्स तो फुल, और बाद में जब हम सप्लीमेंट डाइट ऐड कर देते हैं जिसको हम कहते हैं वीनिंग, ठीक है। वीनिंग इज द प्रोसेस which is started, Ayan, slow please. So basically weaning is the process which starts at the 6 months, ठीक है। और इसमें वीनिंग का मतलब क्या है, दैट इज एडिशन ऑफ द सप्लीमेंटेड फूड टू द बेबी, ठीक है। सप्लीमेंट फूड जैसे कि हम सॉफ्ट डाइट, खिचड़ी, कस्टर्ड, पॉरेज जो हम बच्चे को दे रहे होते हैं, मैश पोटैटोज, बनानास, ठीक है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज बेसिकली वीनिंग, ठीक है। वीनिंग इज द बेसिकली प्रोसेस adding the supplemented food to the baby, and it starts at the time period of the 6 months. So this is about the basically diet therapy during pregnancy and lactation. मैं शेयर कर देती हूँ, ठीक है। कोई भी क्वेश्चंस हो तो तुम लोग इसमें से जो है ना कर सकते हो। वैसे ज्यादा जो है ना न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट्स वगैरह ज्यादा आती है, इसके नोट्स भी मैंने तुम लोगों से कहा था कि तुम लोग किसी सीनियर से ले सकते हो। वैसे आजकल तो कोई भी नहीं आ रहा होगा, कॉलेजेस क्लोज, तो होपफुली 10 जनवरी के बाद उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे ही ओपन होगा तो तुम लोगों के स्टैंड अप्स वगैरह होंगे, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई वांट कि एक दफा हम टच कर लें सिर्फ ना अपने जो है जितने भी तुम लोग के कम से कम जो लेक्चर्स वगैरह हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ना हमने करने हैं, अब जैसे हमने किडनी डिजीजेस वाला नहीं किया हुआ, लिवर डिजीजेस वाला नहीं किया हुआ, तो किताबें सबने खरीद ली है कि नहीं? तो खुद भी थोड़ी सी एफर्ट करना शुरू कर दो कि फरहीन या और भी जो लड़कियां थी जिनके पास बुक्स वगैरह नहीं थी, ठीक है, तो प्लीज बाय द बुक्स, ठीक है। और उसमें डाइट इन लिवर डिजीज, डाइट इन किडनी डिजीज, ठीक है, उसको स्टडी करो ताकि ये हमारा कोर्स कंप्लीट हो। ईमेल चलो आयशा मैं आपको कर देती हूँ, मेरे ख्याल में आपका ईमेल है मेरे पास, ठीक है, मैं अभी चेक कर लेती हूँ। तुम लोगों ने वैसे ग्रुप वगैरह नहीं बनाया हुआ, तुम मेरे पास ना सिर्फ फौजिया का इस टाइम नंबर है जो CR है ना, तो मैं उसी को ये स्लाइड्स जो है ना वो मैं शेयर कर देती हूँ, ठीक है। वैसे तुम्हारा ईमेल भी था मेरे पास, तो लेट मी चेक के फौजिया, फौजिया मैं तुम्हें ना ये स्लाइड्स बेसिकली शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और फिर जो भी तुम लोगों का ग्रुप वगैरह बना होगा ना उसमें वो आपको सेंड कर देंगे। जी फौजिया मिल गई स्लाइड, मैंने व्हाट्सएप कर दी आपको, फौजिया को मैंने व्हाट्सएप की है स्लाइड्स, ठीक है। ग्रुप बनाया हुआ तो मुझे तो कभी तुम लोग उसमें नजर नहीं आए, किस नाम से बनाया हुआ तुम लोगों ने ग्रुप? मेरे पास पोस्ट वाले वो जो है तुम लोग के जूनियर्स उनका, हाँ अगर ग्रुप बना हुआ है तो उसमें तुम लोग मुझे ऐड कर दो सिंपली, ठीक है। ग्रुप बना है तो ऐड कर दो ना, वो ज्यादा बेहतर है बजाय इंडिविजुअली किसी को भेजना। मैंने वैसे फौजिया को भेज दी है, आई होप कि अगर फौजिया नहीं रहती, फौजिया इज देयर और नॉट, फौजिया आज लेक्चर में है कि नहीं, अटेंडेंस मैंने अभी तुम लोगों की कैप्चर करनी है, मैंने स्क्रीनशॉट्स नहीं लिए। अगर फौजिया है तो फौजिया भाई इनको शेयर करो भाई, स्लाइड्स ये सबकी हैं, क्योंकि
ठीक है, अच्छा ग्रुप बनाया हुआ था तो फिर ऐड इतने अरसे से मुझे क्यों नहीं किया तुम लोगों ने? ओके ओके क्लास मैंने तुम लोगों के ग्रुप में भी सेंड कर दिए, ठीक है, दैट इज इजी कि जो भी लेक्चर्स हो वो बंदा आराम से जो है ना वो शेयर कर दे, बजाय इंडिविजुअली किसी को करने से बेहतर है ना ये, और कोई नाराजगी भी नहीं होती कि इसने नहीं दी उसने नहीं दी। अच्छा नेक्स्ट टाइम हमने जो करना है ना, या तो हम डाइट थेरेपी इन किडनी डिजीजेस वी विल डू, ठीक है, या फिर जो है ना, अलीजा व्हाई आर यू स्पीकिंग सो लाउडली? ठीक है, तो एक और टॉपिक है इंटरल और पेरेंट इंटरल एंड पेरेंटरल न्यूट्रिशन, ठीक है, वो से तुम लोग मुझे उम्मीद है कि फेमिलियर हो गए, क्योंकि जैसे तुम लोग की ड्यूटीज क्लिनिकल्स वगैरह में होती है ना, तो इसकी भी मैं तुम लोगों को स्लाइड्स वगैरह पहले से शेयर कर दूंगी, ताकि जब हम स्टडी करें, मुझे पता है पहले से तुम लोगों ने पढ़ना बनाना कुछ नहीं है, फिर भी ठीक है, वो मैं शेयर जरूर कर दूंगी तुम लोगों को। ठीक है, तो ताकि तुम जब हमारा लेक्चर हो तो उससे पहले कम से कम तुम लोग थोड़ी सी तो तैयारी करके आओ ना, ठीक है। तो बाकी टेस्ट तुम लोगों के बाद में ही रखेंगे, अभी हम और भी क्वेश्चन तुम लोगों के कुछ और, या मेरा ख्याल है कि वैसे भी टाइम है अभी हमारे पास, हम कुछ और भी अभी स्टार्ट कर तो सकते हैं, ठीक है। लेट मी चेक कि कौन सी मेरे पास बनी हुई है प्रेजेंटेशन, तो हम वही थोड़ी सी कम से कम डिस्कस कर लें, क्योंकि 5-10 मिनट पहले मैं तुम लोग को फ्री तो कर दूंगी, लेकिन अभी टाइम है हमारे पास ना, तो जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, ठीक है, आई विल चेक कि जो और प्रेजेंटेशन है ना वो हम अपलोड कर सकें। तो वो तो 4% ही 3 हो गई होनी है। अच्छा जस्ट वेट, मैं एक और जो है ना वो लेक्चर अपलोड कर रही हूँ, ठीक है, जस्ट वेट, आई एम जस्ट अपलोडिंग द लेक्चर, तो उसके बाद जो है ना किधर गया, जस्ट वेट, इट हैज बीन अपलोडिंग। ओके हमारे में तो नहीं आया जी क्लास, 2 मिनट तुम लोग वेट करो, बाद में मतलब बाद में खेलेंगे, यहाँ पे तुम्हारी चप्पल दो, थोड़ी नहीं भेजा आपने, तो जस्ट वेट, ये जब तक ना अपलोड होता है, ठीक है, मेरे ख्याल में हो गई अपलोड। जी क्लास, तो ये जो है ना इंटरल एंड पेरेंटल न्यूट्रिशन सपोर्ट है, अनदर इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है तुम लोगों का, ठीक है, न्यूट्रिशन का। पहले तो शुरू करने से पहले तो तुम में से कौन बताएगा कि जी एंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट क्या होती है और पेरेंटल न्यूट्रिशनल सपोर्ट क्या होती है? जस्ट आस्किंग बिकॉज यू आर फ्रॉम दिस फील्ड, ठीक है, तो तुम लोगों को इसका ज्यादा आई बिलीव कि आइडिया होना चाहिए तुम लोगों को, ज्यादा कम नहीं लेकिन कम से कम पता होना चाहिए। कौन बता रहा है जी हमें? ये लीजा की जूती ने हाल किया, ये देखो। ओके जस्ट गो प्लीज।
जी हाँ जी, किसने जी? इंक्लूडिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द लिक्विड फॉर्म। मारिया तो फैल, क्या ये डेफिनेशन है? पेरेंटेरल आईवी, आयशा तारिक, यस, ये थोड़ी बेटर है कि आईवी के थ्रू जो होते हैं दैट इज पेरेंटेरल। एंटेरल एनजी फीडिंग, पेरेंटेरल फॉर आईवी। ठीक मारिया तो फैल, यस, दिस इज गुड। ओरल नहीं हम कह सकते, ठीक है, ओरल तो नहीं बंदा ले सकता, तभी तो वी मूव टुवर्ड्स द एंटेरल और पेरेंटेरल ना। तो सिंपली एंटेरल एंड पेरेंटेरल न्यूट्रिशन सपोर्ट हमें तब रिक्वायर होती है व्हेन द पर्सन कैन नॉट कंज्यूम द ओरल डाइट, ठीक है। जब कोई ओरल फीड, ओरल डाइट नहीं ले सकता, तभी तो वी मूव टुवर्ड्स एंटेरल और पेरेंटेरल की तरफ हम तभी तो मूव करते हैं। सपोज किसी को माउथ अल्सर है, सपोज किसी को थ्रोट का कोई सर्जरी हुई है, ठीक है, एड्स है, कोई सिंड्रोम है, कोई ऐसा इशू है, सोर थ्रोट किसी भी वजह से, कि वो जो है, लेट मी जस्ट मूव फ्रॉम हेयर, ठीक है, 5 मिनट बस तुम लोग वेट करो कि मैं अपनी जगह जरा चेंज कर लूं। एक जी फाइनली आई एम बैक। अच्छा अच्छा जी, तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट, जी बिल्कुल, जीए ट्रैक्ट का डिसऑर्डर है, ठीक है, वी डिस्कसिंग अबाउट इंटेरल और पेरेंटेरल। अब इनमें फर्क ये है कि जब कोई भी ओरल डाइट नहीं ले सकता, ठीक है, तो आइदर हम उसको या तो एनजी ट्यूब फीडिंग के थ्रू वगैरह देते हैं, ठीक है, नेजोगैस्ट्रिक, या हम जो है डुडेनम जेजुनम के थ्रू भी दे सकते हैं, ठीक है, तो दैट इज एंटेरल सपोर्ट। लेकिन एंटेरल सपोर्ट के लिए ये कंडीशन है कि उसका जीआई ट्रैक्ट फंक्शनल हो, वर्किंग कर रहा हो। अगर ऐसी प्रॉब्लम है कि बंदा ट्रॉमा में है, बंदा उसमें कोमा में है बंदा, या बंदा जो है ओरल भी नहीं ले सकता, उसका जीआई ट्रैक्ट भी फंक्शनल नहीं है, तो इन दैट केस वी मूव टुवर्ड्स द पेरेंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ठीक है, और जो कि लॉन्ग कैथेटर्स के थ्रू दी जाती है, और वो एनजी ट्यूब के जरिए जो है ना वो दी जाती है। तो एंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट क्या है जी? कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट बाय प्लेसमेंट थ्रू द नोज, ओसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन, डेडेनम और जेजुनम, इसको हम कह रहे हैं कि जी एंटेरल, और ये ट्यूब फीडिंग से थ्रू दी जा रही है। और इसके लिए कंडीशन मैंने पहले भी जैसे बताई कि जीआई ट्रैक्ट मस्ट बी फंक्शनल। इफ द गट वर्क्स यूज इट, अदरवाइज जो है हमने यूज नहीं करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जॉस्ट ऑल ओरल डाइट मेथड फर्स्ट, कि जितने आपके ओरल डाइट के मेथड्स हैं उसको हमने एग्जॉस्ट कर देना है, ठीक है, यानी कि उसको बंद करेंगे, यानी कि वो बंदा नहीं ले सकता तो फिर ही हम इसको यूज करेंगे। ओरल सप्लीमेंट्स हम दे सकते हैं बिटवीन मील्स, एडेड टू फूड, एडेड इनटू लिक्विड्स, एनहांसेस अदरवाइज पुअर इनटेक। अगर हम सप्लीमेंट्स नहीं लेते, सिर्फ उसी पे रहते हैं जो आपकी एंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट है, तो डेफिनेटली पर्सन में बिकम, जो पेशेंट पहले ही है, ही और शी में बिकम ऑल्सो वीक। इसके अलावा चिल्ड्रन और टीन्स वगैरह को भी हम ये दे सकते हैं जी एंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट। अब
पेरेंटेरल जो है, मैं पहले भी बताया कि हम तब देंगे जब जीआई ट्रैक्ट भी डिसफंक्शनल हो जाएगा, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इनकम्पिटेंसी होगी, तब हम देंगे पेरेंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट। इसके अलावा हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट विद पुअर एंटेरल टॉलरेंस और एसेसिबिलिटी। फिर हमसे दादी क्या तुमने मैसेज किया है? अच्छा, एनीवेज, एंटेरल जो है अगर इंजेक्शन अपेयर्ड है, इम्पेयर्ड है, ठीक है, इनजेस्ट करना किसी चीज को, निगलना, खाना, ठीक है, डाइजेशन नहीं है, सिर्फ इनजेशन अगर इम्पेयर्ड है, या इनएबिलिटी टू कंज्यूम एडिक्वेट न्यूट्रिशन ओरली है, या इम्पेयर्ड डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म है, स्वेयर वेस्टिंग या डिप्रेस ग्रोथ है, ठीक है, तो उन केसेस में हम सिर्फ जो है एंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो है ना वो हम देंगे। और पेरेंटरल हम कब देंगे? जीआई ट्रैक्ट इनकम्पिटेंसी है, हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट विद पुअर इंटरनल टॉलरेंस और एक्सेसिबिलिटी हम तब देंगे, ठीक है। तो ये एक टेबल है, नहीं नजर आ रहा तो जूम करके तुम लोग जो है ना इजीली इसको देख सकते हो कि कौन कौन सी ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें हमने इंटेरल देने हैं और कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हमने पेरेंटरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट देनी है। तो इंटेरल के लिए इट हैज बीन गिविंग कि कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, एचआईवी एड्स है, फेशियल ट्रॉमा है, ठीक है, एसोफेगियल ट्रॉमा है, कंजेनिटल कोई एनोमलीज हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ब्रेन इंजरी, ठीक है। इसके अलावा ये है किसी को मेल न्यूट्रिशन स्वेयर होती है, इनएबिलिटी टू कंज्यूम एडिक्वेट न्यूट्रिशन। तो इन कंडीशन हेलो हेलो क्लास, आर यू एबल टू हियर मी? क्लास, इधर ही हूँ मैं, महरीन फरहीन, मैं इधर ही हूँ, ठीक है। सॉरी गॉट डिस्टर्ब, एक सेकेंड। हाँ जी, इम्पेयर, यस। अब ये जरूरी नहीं है कि तुम लोगों को, ये नहीं मैं कहूंगी कि सारे के सारे डिसऑर्डर्स याद रख लो कि जी किन कंडीशंस में एंटेरल न्यूट्रिशन सपोर्ट देनी है और किन में नहीं, ये तुम लोग खुद भी फेमिलियर हो इससे, ठीक है। बट अगर कभी एग्जाम्स में आ जाता है तो दो चार हमें याद होने चाहिए कि अंडर विच सर्कमस्टांसेस और अंडर विच कंडीशंस वी रिक्वायर द न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ठीक है। तो इसमें हमें चार पांच अगर हम याद कर लें तो दैट विल बी बेटर। इसके अलावा जो है ना, क्योंकि देखो तीन चार इन्होंने रीजंस लिखी हुई हैं, इम्पेयर्ड डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, स्वेयर वेस्टिंग और डिप्रेस ग्रोथ, ठीक है, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम है, सेप्सिस है, कैंसर है, फेलियर टू थ्राइव, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सेरेब्रल पाल्सी, ठीक है, और मैसेथीनिया ग्रेविस, ठीक है, दैट इज आल्सो अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो इन कंडीशंस में जो है हम देंगे एंटेरल न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ठीक है। ये मैं तुम लोगों से ना स्लाइड्स करती हूँ शेयर, और नेक्स्ट टाइम जो है ना बेसिकली वी विल डू इट, क्योंकि अगली क्लास मेरी 5 बजे, उससे पहले मैं जो है ना दोनों नमाजें पढ़नी है, असर और मगरिब, और दोनों जल्दी से पढ़ लूँ। स्लाइड्स मैं शेयर करती हूँ, ठीक है। कोई क्वेश्चंस हो तो तुम लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हो चैट पे, ठीक है, मैं इधर ही हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस यू कैन रिस्पॉन्ड थ्रू चैट। टेकिंग योर अटेंडेंस, आपकी अटेंडेंस में लेने लगी हूँ।
The class you gone? जी जी, खत्म तो होने वाला था टाइम, 5 मिनट हैं। इसमें तुम लोगों की अटेंडेंस मैंने ले ली है, स्टूडेंट्स में लड़कियां भी भाग गई हैं, मेरे ख्याल में 9 लड़कियां रह गई हैं सिर्फ। चलो एनीवेज, सी यू ऑन थर्सडे। ठीक है, सी यू ऑन थर्सडे इंशाल्लाह। मेरी भी नेक्स्ट क्लास है, तो दैट्स व्हाई आई एम साइनिंग ऑफ। सो आई विल शेयर दी स्लाइड्स विद यू। ठीक है, तो इंटेरल पेरेंटेरल तुम लोगों ने करके आना है फिर। ठीक है, कम से कम उसको रीड करके आना है। ठीक है, जो भी स्लाइड्स हैं उनको, सिर्फ डेफिनेशन नहीं, एंटेरल और पेरेंटेरल